আমরা কেন বলি নেতাজি ঝড় চাই, এর মূল কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুই কিন্তু স্বাধীনতার আগে বলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজে এবং তাদের কৌশল আমাদের ধরতেই হবে। স্বাধীনতার পর ভারতকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে ব্রিটিশ রাজের আমূল পরিবর্তন। কারণ এই ব্রিটিশ সরকারই সকল ভারতবাসীকে এমনভাবে আইনের মোড়কে ফেলেছিলেন, যা আমরা বলে থাকি, ভুল বললাম, আমরা নয়, সেই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনী দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শক্তির কূট চাল ধরে ফেলেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাই তো নেতাজি গোপন ফাইলে বলেছিলেন, যা আজ অপ্রকাশিত, ব্রিটিশ আইন হচ্ছে ব্ল্যাক জাস্টিস, যা আজও আমরা সেই ব্ল্যাক জাস্টিসকেই বহন করে চলেছি। বহু রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে, কেউ এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর গোপন ফাইল যেমন প্রকাশ করতে চায়নি, তেমনি তাই ব্ল্যাক জাস্টিস এখনো আমাদেরকে এক প্রকার শোষণ করে চলেছে। যেমন ধরুন 1985 সালের জৌনপুরের ঘটনায় 10 বিঘে জমির দাবিদার দুজনেই দাবি করছে এই জমি তাদের অধিকারে উইল আছে। আর এই ব্রিটিশ আইন, যা নতুন মোড়কে ভারতীয় আইন বলছে, সেই আইনের বিচার ব্যবস্থায় 37 বছর কেটে গেল, এখনো ডিসিশন হয়নি। এরকম ফাইল বাংলা সহ সারা দেশব্যাপী 5 কোটি মামলা ঝুলে রয়েছে। এই মামলা ঝুলে রাখার রসদ হচ্ছে ব্রিটিশ আইন, ব্রিটিশ প্ল্যান। তারা দেশবাসীর সমস্ত জমি সম্পদ এইভাবে ক্রোধ করে নিতে এই দীর্ঘমেয়াদী আইন করেছিল। তাই আমরা বলি, কেন ভারত যদি সত্যি স্বাধীনতা হয়, কেন ব্রিটিশ আইন এখনো লাগু আছে? তাই দেশ জাগরণে, আইন জাগরণে দাবি জানায় নতুন গড়ে ওঠা নেতাজি সুভাষ সংহতি মঞ্চ। তাই আমরা প্রতিটা সাংসদ হয়ে যারা লোকসভায় আসবেন তাদের কাছেও আমরা আবেদন করেছিলাম, এখনো করছি, এই বলে নেতাজি সুভাষ সংহতি মঞ্চ থেকে বলা হয়, জয়ী এবং পরাজিত সাংসদ প্রার্থীরা লোকসভার ভেতরে এবং বাইরে ঝড় তুলুন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিটা ফাইল বের করার এবং এই ব্ল্যাক লিস্টের সলিল সমাধি করে প্রকৃত বিচার যেন খুব কম সময়, 1 যোগ 2 যোগ নয়, নিষ্পত্তি হোক। মেয়াদের চুক্তি অর্থাৎ বেঁধে দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত, মাস পর্যন্ত, যাতে বিচারকদেরও সুবিধা হয়, আইনজীবীদেরও সুবিধা হয়, দেশবাসীও সুবিচার পায়। তাই চাই নেতাজি সুভাষ জাগরণ তথা নেতাজি সাইক্লোন। শুনুন, ব্ল্যাক লিস্ট বা ব্ল্যাক জাস্টিস আমরা কেন বলছি, সেটাই জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন সিনেমায় ব্ল্যাক জাস্টিসের ডিরেক্টর ডক্টর কপিল কাকল। 1971 के वॉर में पाकिस्तान में बम फेंकने वाले, पाकिस्तान के फौजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले एक कर्नल कबोत्रा है, पंचकुला में रहते हैं। दुश्मनों के उन्होंने दांत तोड़ दिए। आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। 2023 आ चुका है, 23 साल में वो अपने मकान को नहीं छुड़ा पाए। अभी मामला पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो 23 साल में वो सबसे नीचे पायदान पे है। वास्तविकता यह है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए, अंग्रेजी व्यवस्था यहीं छोड़ गए। यह व्यवस्था भारत में न्याय देने के लिए नहीं बनी थी। यह जो न्यायिक जुडिशियल सिस्टम था भारत में जो बनाया गया, वो केवल और केवल भारत को लूटने बांटने के लिए बनाया गया था। क्योंकि कानून वही चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम वही चल रहा है, इवन हमारा ड्रेस भी वही चल रहा है। अंग्रेज काले कपड़े पहनते थे, हम भी काले कपड़े पहनते हैं। अंग्रेज जून के महीने में उनको गर्मी लगती थी तो 1 महीने छुट्टी करके इंग्लैंड चले जाते थे। आज भी हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरे मई जून बंद रहता है। अंग्रेजों को क्रिसमस के टाइम में दिसंबर में छुट्टी मनाना जाना होता था, 1 महीने छुट्टी कर चले जाते थे। आज भी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में क्रिसमस के टाइम में 15 दिन 20 दिन बंद हो जाती है। तो सोच वही है, किताबें वही है, व्यवस्था वही है, कानून वही है, तो स्वाभाविक सी बात है जस्टिस होगा कहां से? जस्टिस कैसे होगा? हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे। हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं किया। जितने में एक एयरपोर्ट बनता है, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आती है। अगर हमारी सरकारों ने एक एयरपोर्ट की कीमत
जुडिशियल सिस्टम पे खर्च कर दिया होता तो हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो गई होती। आज घटिया, चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी के साथ न्याय हो जाए अन्याय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्दोष को जेल हो जाए जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, दोषी को बेल हो जाए जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लाखों लाख लोग जेल में सड़ रहे हैं, लाखों धोखेबाज भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं। मूल कारण है ब्लैक जस्टिस सिस्टम। যেমন দেখুন, গাঁজা পাচারকারী ধরা পড়লো কিংবা গাঁজা ধরা পড়লো, সেই গাঁজা আবার ঘুরে এসে লোকাল থানাতেই জমা পড়লো। সেই গাঁজা বা হেরোইন কখনোই ধ্বংস বা পুড়িয়ে ফেলা হয় না। কেন হয় না? আইন কি বলছে? এজন্যই চাই নেতাজি ঝড়। उसके लिए ये नहीं देखते कि जापान में कौन सा कानून है, अमेरिका में कौन सा कानून है, सिंगापुर में क्या अच्छा चल रहा है। कनाडा में रेंट का मामला एक डेट में खत्म होता है। सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा पाया गया, उसको फांसी हुई है। दोबारा वहां ड्रग स्मगलिंग होगी क्या? तो भारत में चाहे वो ड्रग स्मगलिंग है, माफिया राज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन सब के लिए हमारा जस्टिस सिस्टम जिम्मेदार है। कोई भी अपराध होता है उसमें दो पक्ष होता है, एक पीड़ित एक अपराध करने वाला। जो पीड़ित होता है वो चाहता है जल्दी उसको न्याय मिल जाए, अपराध करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा चले। भारत का न्यायिक सिस्टम अपराध करने वाले के साथ खड़ा है। बलात्कारी चाहता है उसका मुकदमा 30 साल चले और मुकदमा 30 साल चलता है। भू माफिया चाहता है कि गरीब की जमीन पे कब्जा कर ले, उसका मुकदमा 50 साल चले और आज की डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान न्यायिक सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है, भू माफिया के पक्ष में है, ड्रग स्मगलर के पक्ष में है, ह्यूमन ट्रैफिकर के पक्ष में है, नक्सलियों के पक्ष में है, माओवादियों के पक्ष में है, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं उनके पक्ष में है। এসবই ছিল আইন স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সরকারের কাছে, কারণ ব্রিটিশরা অন্যায় করলে যাতে আইনের মাধ্যমে পার পেয়ে যায়। তাই আজ এই ধরনের আইন বলবৎ আছে এই কারণে, ধর্ষক থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী থেকে শুরু করে জমি জালিয়াতি, জমি জবরদখলকারীদের সুবিধার্থে যেমন হতো ব্রিটিশ সরকারের আমলে। লুঠতরাজ ব্রিটিশ অর্থাৎ ইংরেজরা অন্যায় করলে যাতে আইনের মাধ্যমে পার পেয়ে যায়, অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী আইন চলে। আজ সেই আইনই কেন বলবৎ থাকবে? তবে কি সত্যি প্রকৃত অর্থে ভারত স্বাধীনতা পায়নি? তাই ব্রিটিশ শক্তির কাছে পদলেহন করে এখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো চলছে। তবে কেন নেতাজি ঝড় হবে না? দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন নেতাজির আবির্ভাব, তথা আমাদের সকলকে জাগরিত হতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে এগোনোর পথই হচ্ছে নেতাজি সাইক্লোন। ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आखिर चाइना का जस्टिस सिस्टम कैसा है, सिंगापुर का कैसा है, कनाडा का कैसा है, फ्रांस का कैसा है और अमेरिका का कैसा है? हम क्यों नहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी अडॉप्ट कर लेते? दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। मेरी बहन दीपिका नारायण बैठी हुई है, ये लगातार फॉल्स केसेस के खिलाफ, इनको मैं देखता रहता हूं, एक्टिव रहती है। एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग और कंप्लेन पे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैं शिकायत कर रहा हूं इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, हजारों की संख्या में फेक केसेस खुद ही खत्म हो जाएंगे। आज की डेट में लोग जुडिशरी की लापरवाही के साथ साथ फर्जी केस से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, फर्जी एफआईआर से परेशान है, हजारों परिवार परेशान है। कई बार देखा गया कि जो फैमिली के केसेस होते हैं उसमें कितने सारे फेक केसेस भी आ रहे हैं। लोगों को अपनी जमीन छुड़ाने में 30-30 साल लड़ना पड़ रहा है, 35 साल लड़ना पड़ रहा है। अगर 30 साल 35 साल के बाद कक्कड़ जी उसको अपनी जमीन मिल भी गई तो उसके साथ न्याय कहां हुआ? 35 साल में उसका टाइम बर्बाद हो गया, 35 साल में उसका पैसा बर्बाद हो गया, 35 साल वो मेंटल ट्रॉमा में रहा, 35 साल उसने तारीख पे तारीख झेली है। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई बार जाके देखा, ऐसे परिवारों को देखता हूं जिनके पास बस से आने के लिए पैसा नहीं है, साइकिल से आते हैं। ऐसे परिवारों को देखता हूं जो चाय नहीं पी सकते अपने पैसे से, बेचारे घर से रोटी बांध के और अचार लेके आते हैं, लेकिन वहां मजबूरी में वकील को पैसा देते हैं। तो हमारी कोर्ट कचहरी वास्तव में दलाली का अड्डा बन गया है। जिनके पास पैसा है वो उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया हो, मर्डर किया हो, रेप किया हो, उनको जमानत हो रही है, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। तो जिसने मर्डर किया वो तो कभी जेल गया ही नहीं, एक निर्दोष जेल गया,
10-20 साल के बाद उसने अपना जमीन बेचा, सब कुछ किया, मां बाप सब कुछ तबाह हो गए, फिर वो सबूत के अभाव में छूट रहा है। तो सबूत के अभाव में अगर 20 साल के बाद छूट भी गया हो, उसका 20 साल कौन लौटाएगा? उसके 20 साल के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके 20 साल जो बर्बाद हुआ उसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी? जिन्होंने शपथ लिया। शपथ कौन लेते हैं? जजेस लेते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री लेते हैं। तो आज की डेट में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वालों को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला इसीलिए मिलता है कि लोगों को न्याय मिल सके, फास्ट जस्टिस मिले, कंप्लीट जस्टिस मिले। अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है। कहा ना, 5 करोड़ लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से पीड़ित हैं और 5 करोड़ मुकदमे एसओसी, डीडीसी, तहसीलदार के यहां चल रहा है। तो अगर 5 करोड़ से 30 करोड़ लोग इधर पीड़ित हैं तो उधर भी पीड़ित है। वास्तव में बहुत बड़ी संख्या भारत में इसी से पीड़ित है और अपराध, भ्रष्टाचार और जितनी भी अराजकता चल रही है उसका मूल कारण भी यही है। जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, कानून सख्त हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, न्यायपालिका का खौफ पैदा हो जाए और ये थाने जो दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील जो दलाली का अड्डा बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है,